session for you all. So, without wasting our time, we'll just start with it. So, today I'll just share my screen. Just a second. Is my screen visible? Yes, ma'am. It's visible. Yeah. So, as our workshop is on integrated Revit, so before jumping onto Revit, we'll start with the basics, which is BIM. So, whenever you are planning to get into this industry, you'll be coming across BIM, Revit, some other software names, but basic uh, fundamentals should be clear. So, we'll start with BIM. So, basically, BIM is an acronym for Building Information Modeling. Now, what is it? So basically, information modeling is a process. It is not a software. It is entirely a process on which softwares are based. So you can take an example of Revit, which is based on BIM. Okay. So what does BIM do? So basically, it will give you an integrated, building system. With the help of BIM technology, you can build up your models before it is done on site to avoid certain things which will be seeing in the coming in coming time. So basically, building information modeling accompanied with Revit are revolutionizing the architecture, engineering, and construction, which is the AEC industry. So let's start with BIM, Revit, and their importance. So as I said, BIM stands for Building Information Modeling. Now, it's a digital process which is widely used in the AEC industry, as I said, architecture, engineering, and construction. So whichever you are planning to opt, you'll come across this term, and I think this is very fundamental, which needs to be cleared there and there. So basically, with BIM, you can manage the operations of your building. It helps you to create a 3D virtual model of what actually is going to be done on the site. Okay, so what are the characteristics of BIM? So basically, BIM is a functional, you can say, representation of functional and physical characteristics of the elements. So, say in the case of wall, floor, you will be having all the physical and what you can say functional characteristics of all those elements. So, importance of Revit in the BIM workflow. As I said, it will help you to create intelligent 3D models. Now, just randomly, if I don't know if you can unmute and or you can put up in chat box. Are you familiar with CAD or heard about Revit? Okay, so first question, let's keep it easy. Are you familiar with CAD and CAD workflow? Yes, I'm unable Yes, to. yes, yes, ma'am. Yeah. Yes, Okay. yes. yes, So that makes it easy. So basically in CAD, you are doing drafting. Okay. Whereas when it comes to BIM or Revit, you'll be doing modeling. You won't be doing drafting. Okay. So intelligent 3D models. So instead of drafting, you'll be creating intelligent 3D models, which will give you information as the project, goes through different phases. Okay. Then clash detection. Now, obviously, a building is made up of three domains, which is architecture, structure, MEP. Whether you are specializing in any one of them, but yeah, there are people involved which will be, engaged in these domains and disciplines. Okay. So when a model is created, all these three disciplines ka models are being created. They are put together so that you can detect the clashes before it is done on site. Just imagine you have started, building what you can say, a building or a structure only on the site without doing all these things. And then after the elements are being constructed, you come to know that, the column is clashing with the beam, or say a wall is coming in between the beam, and then you'll need to break, because obviously it is not a model, it is actually being done. And then you just imagine the breaking thing,
then the time which is wasted, the labor cost which is wasted, the material cost which is wasted. So in order to avoid all these errors, you do clash detection beforehand, before the actual construction begins, and then whatever clashes are being detected, they are resolved, and then your actual construction starts on the ground. Then disciplinary collaboration, as I said, the architecture, structure, MEPF. So mechanical, electrical, plumbing, and firefighting. All these disciplines come together, and then so if I'm sitting here, you are sitting somewhere, you can just look around and see. You can just see a wall maybe, but within that, all these disciplines are running. Okay, and 4D and 5D integration. So yes, once your model is created, you can take it up to an advanced level, which is 4D and 5D. So 4D is basically time. You can timeline it, and 5D is cost. So you can also incorporate cost. So to keep it simple, if I have a wall, what all elements will be required? Firstly, labor to construct it, bricks, cement, plaster, whatever things which are in your wall, as well as material, as I said, bricks and all those things. So all these elements ka cost can be integrated within the wall to give you a budget of, your project will be costing this and this at the end. Okay, so all these things can be generated beforehand, before your actual construction starts in place, all with the help of BIM. So I don't think so with CAD this is possible, but yeah, with BIM it is possible. So, as I said, BIM is a process, or you can say a platform on which certain softwares are available in the market, of which Revit is the, you can say, the famous one or mostly used one. Okay, so let's get familiar with certain characteristics of Revit. So, what was the purpose of invention of Revit? So, basically, it was built for building information modeling, which I said earlier, and it just works for architects, designers involved in the AEC industry, enabling them to basically design freely and deliver efficiently. Okay. Now, as you design with Revit, automatically the certain views are being created, the floors and ceiling plan, the elevations, the section views, the 3D views, the area calculations, schedules and quantities, the BOQ and material takeoff. Now, all this based on your specifications. Obviously, it is not magic. Whatever you are feeding into the Revit software, I'll be showing you a live project also. So, whatever you are feeding into Revit, at the end, when you want something out of it, you'll be getting all these things. Now, in CAD, you are drafting all the sections, 3D views, elevations. In Revit, you don't need to do it. Simultaneously, if you're doing a floor plan or a ceiling plan, simultaneously all these the what you can say, these views, these plans will be created. You can sorry, just off the track, you can post in the questions in the chat, so that we can take it at the end, so that we just don't break the link right now, but you can instead you forgetting it, you can just post it in the chat. I'll just look at them at the end or in between. Okay. Now, if you can see this screen, so basically this is a 3D model. Now, whatever you are seeing in the background, you can see the elevations, in the down here, you can see, I'm not sure, yeah, if you can see my cursor, this is the plan view. This is the solar study, then sheet view. So basically what is important for as submittals or deliverables is the sheets. So basically once your the 3D view or the 3D model is created, you can generate all these out of the same model. You don't need to do it or draft it again and again or model it again and again. Okay. So a complete 3D virtual model with its representation in the form of floor plans, section views, elevations, schedule and quantity, solar study, and final sheets, that is the layouts or the final deliverables which we need to submit to our the project owner or the developer. Now all this
in only one Revit file. You don't need to create multiple Revit files for this. Now coming to certain characteristics, parametric components. So basically, if it comes to resizing, if you come up with the option for your client, but the client is not satisfied with it, so you can have certain 3 or 4 options with you, which you can just swap directly. So if you can see in this screenshot, there is a knob and there is a handle. So you have created a knob, but the client wants a handle. So you can directly swap in the drop down list which is available here. So parametric, or in case you need to resize the door, you don't need to delete it and then create a new one. You can just resize it with the help of the parameters which are available within the door thing. Bidirectional associativity. So it's simple as a change anywhere is a change everywhere. So in this figure, if I create this, if I delete this window from here, it will be deleted from my elevation, plan, section, everywhere. Okay. In the same way, if I happen to add a window over here, it gets added in all the views. So you don't need to, double it or, check in every views and get it updated. It will get updated by itself. You don't need to do the extra work behind it. Okay. So bidirectional associativity, a change anywhere is a change everywhere. Next, detailing. So the persons who are on the site, okay, the laborers, now they won't understand all this thing. They will be understanding only the detail views. Whatever you are giving, जो भी आप उनको दे रहे हो वो वैसे ही create करेंगे, right? So वो details भी you can create in the Revit itself. So for instance, if you need what you can say, a detail view, a call out view, or a zoomed out view of the column or the plinth, okay, or the foundation, so you can tell, you can convey it from your drawings कि ये सीमेंट का बना है, इतना इतना सीमेंट है, and tagging कर सकते हो. Then you can provide what you can say, uh, detail views along with tagging, मिशन along with एसटीपी। what. Yeah. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब 2D ड्राफ्टिंग होता है उसके ऊपर बीआईएम काम करता है क्या? 2D ड्राफ्टिंग हम करते हैं, एंड देन वो 2D ड्राफ्टिंग के बाद अगर हमको एक बिम मॉडल उसमें से बनाना है, तो देन रेविट में लेके हम बिम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है कि इसमें हर चीज वैल्यू पुट अप करना पड़ती नहीं, है? नहीं करना पड़ेगा हमको. ओके। देन स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज. सो बेसिक जो एक डेवलपर, जो एक एंड यूजर का रिक्वायरमेंट है, दोज आर स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज और बीओक्यूज. बिकॉज अल्टीमेटली रहने वाला ओनर विल बी समवन एल्स, बट जो जिसका वो प्रोजेक्ट है उसके लिए कॉस्ट मैटर करता है, राइट, बजट मैटर करता है. सो फ्रॉम ऑल दिस यू कैन जनरेट स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज और क्वांटिटी टेक ऑफ ऑल्सो. सो बेसिकली मेरे पूरे प्रोजेक्ट में कितने ब्रिक्स यूज हुए हैं, या फिर फ्लोर जो है उनमें कितना टाइलिंग्स यूज हुआ है. ऑब्वियसली बिकॉज टाइलिंग्स भी हमको मंगवाना पड़ेगा, उसका कितना कॉस्ट जाता है वो देखना पड़ेगा. सो फॉर फ्लोर्स, देन फॉर वॉल हो गया, देन कितने डोर, सिंपल एक डोर आप वेंडर से अगर ले रहे हो तो डोर्स कितने यूज हुए, उसके पीछे का कॉस्ट क्या है. सो हर एक एलिमेंट का आप स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज निकाल सकते हो. ओके. बी इट 20 फ्लोर का बिल्डिंग, बी इट 50 फ्लोर का बिल्डिंग, आप पूरा उसमें से स्केड्यूल्स एंड क्वांटिटीज निकाल सकते हो. बिल्ट इन लाइब्रेरीज. सो बेसिक जो कैड में हम ब्लॉक्स कहते थे, रेविट में हम उनको फैमिलीज या लाइब्रेरीज बोलेंगे. ओके. सो अगेन आपको इधर बिल्ट इन लाइब्रेरीज रेविट में अवेलेबल है. आपको कुछ यूनिक क्रिएट करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, यू कैन स्टिल क्रिएट इट, या फिर देर आर वेरियस साइट्स अवेलेबल फ्रॉम विच यू कैन डाउनलोड इट. ओके. सो 3 ऑप्शंस यू हैव, ईदर यू कैन यूज इन बिल्ट वाला लाइब्रेरीज. सेकेंडली यू कैन क्रिएट, अगर कुछ यूनिक प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का ऐसे है कि मुझे सब कुछ अलग चाहिए, so you can still create your own families.
या फिर आप बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। विजुअलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज थोड़ा सा अपीलिंग रहेगा तभी ज्यादा उसको व्हाट यू कैन से एक क्या बोलते हैं, अगर हम कुछ अच्छा बताएंगे तो ही पब्लिक विल परचेस इट और गेट बैक टू अस। सो विजुअलाइजेशन विच इज द फाइनल रेंडरिंग। ओके, ये भी आप रेविट थ्रू कर सकते हो। Initially, Revit quality was not so good, but right now they have integrated with Twinmotion. So आप Revit का मॉडल Twinmotion में ले जाके उसको और अच्छे से रेंडर कर सकते हो। This is basic Revit का rendering, but still if you want more appealing things, you can still do it with the help of Twinmotion, which is available in Revit itself. Okay, so bird eye view, देन नाइट व्यू। सो बेसिकली नाइट व्यूज हमको लाइटिंग इफेक्ट्स देखने के लिए चाहिए। सो हम नाइट व्यू रख के लाइट्स जो जो भी हमने यूज किया है वो ऑन रख के नाइट रेंडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज डे प्लस द इल्यूमिनेशन, सो इंडोर लाइटिंग प्लस बाहर का सनलाइट, सो बोथ द थिंग्स ऑल्सो यू कैन कीप इट। सोलार स्टडी, एज आई सेड, सो सोलार स्टडी क्यों यूज होता है, ताकि बेसिकली अभी बहुत फैड चल रहा है ग्रीन बिल्डिंग्स। ओके, सो ग्रीन बिल्डिंग मींस एनर्जी एफिशिएंटली हमको यूज करना है, अननेसेसरी हमको लाइट का वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ये सब नहीं करना है। सो इन दैट केस आपका मॉडल जब बन जाता है, बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द वेदर, यू कैन रन अ सोलार स्टडी जो रेविट में अवेलेबल है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट कितना सनलाइट कैसे मिल रहा है, कितना वॉल्स इल्यूमिनेट हो रहे हैं, वो देख के यू कैन फिक्स अप लाइटिंग फिक्सचर्स, और कितना विंड मुझे मिल रहा है, वो सब आप एनालाइज करके जहां आपको लाइटिंग फिक्सचर्स नेसेसरी है वहां पे आप फिट कर सकते हो। ओके, सो इवन सोलर स्टडीज ऑल्सो यूज टू सी कि सन का कितना व्हाट यू कैन से अफेक्ट आपके बिल्डिंग पे गिर रहा है। ओके, सो आप बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये सोलर स्टडी आपके प्रोजेक्ट पे रन कर सकते हो। सो ऑब्वियसली बिलीव मी, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस 8 years नाउ। सो मैंने स्टार्ट ही बिम से किया है। So BIM is poised to be a major innovation, you can say, in the AEC industry. And Revit उसको कुछ हद तक support, not कुछ हद तक, I would say, at the what you can say, at the maximum it is supporting BIM. And there are number of reasons. ये तो कुछ reasons हुए जो मैंने आपको बताया, but there are number of reasons behind the increasing acceptance of Revit in the AEC industry. So there are many architect firms who are adapting Revit right now, जो CAD से उठकर they are trying to implement Revit within their firms. So yes, it is very important, and if you are taking a decision to learn Revit, I think it is the best decision. Okay, so अच्छा, benefits ये of, yeah, बोलिए। आप ये बताइए, एक्चुअली आई एम वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। Okay, ये मेरे लिए क्या काम करेगा ये? सो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑब्वियसली आप आपके टीम्स सेट कर सकते हो। एंड अगेन आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू डोंट नीड टू मे बी वर्क विथ रेविट, बट यू कैन यूज रेविट टू विजुअलाइज, टू सी कि आपका प्रोजेक्ट सही से बना है या नहीं। जो क्लैश डिटेक्शन रन करके आपको मिल रहा है, उसमें कितने क्लैशेस कितने क्लैशेस आ रहे हैं, वो रिजॉल्व कैसे करना है बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स। और सो तो यू आर्किटेक्ट कैन रहते ही हैं हमारे मॉनिटर, पास। तो आप ये सब चीजें मॉनिटर कर सकते हो पहले ही, ओके। इंस्टेड ऑफ साइट पे जाने के बाद ये सब चीजें आप अच्छा, देखो, या ये आपका जो प्रो क्या नाम है, प्रो सॉरी क्लाउड ट्रेन। ट्रेनिंग जो प्रो ट्रेन जो ये इंस्टीट्यूट है आपका, ये अहमदाबाद से टाइप है? वो प्रीतम आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ओके। बट जो भी आप लाइक क्लासेस जो भी रन होते हैं वो ऑनलाइन भी रन होते हैं। सो इफ यू आर विलिंग तो वैसे भी कर सकते हो, बट द ऑफिस इज इन अहमदाबाद। अच्छा, ऑफिस आपके अहमदाबाद में? ओके।
Okay, so benefits of using Revit, automated documentation. As I said कि आपके लिए at the end documentation is very important. So आपका जो जैसे मैंने बताया प्लान सेक्शन एलिवेशन ये डायनामिकली अपडेट होंगे और एज अ डॉक्यूमेंट आपके प्रोजेक्ट में सेव रहेंगे. सो एट कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन यू कैन डू दैट. एनहांस्ड विजुअलाइजेशन जैसे हम लोगों ने रेंडरिंग्स देखे तो विजुअलाइजेशंस को भी आप एनहांस कर सकते हो टू कीप मैम इट मेरा एक अपीलिंग. क्वेश्चन है। हाँ. एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जूनियर मैनेजर। ओके। हम्म. मेरी हम्म. साइट पे कंस्ट्रक्शन का एक सेंट्रल कैंटीन बन रही है। फॉर दैट ओके. मेरे पास उसका प्लान एंड सेक्शन है ऑटोकैड में। ओके. अगर मेरे को इसको रेविट में लेके 2D और 3D व्यूज में मुझको चेंज करना है, हम्म. ऑलरेडी डायमेंशन मेरी उसमें है ऑटोकैड हम्म. में, तो क्या ये रेविट वो उसको पकड़ेगा सेम डायमेंशन से 2D एंड 3D में उसको चेंज कर सकता है? सो आपको पहले कैड प्लान रेविट में लाना पड़ेगा हम्म। एंड जो एलिमेंट्स रेविट में अवेलेबल है सो जैसे वॉल हो बीम्स हो कॉलम्स हो वो हम्म। एक बार आपको प्लेस करना पड़ेगा. नाउ प्लेस मतलब मैन्युअली आपको ड्रैग मतलब ड्रॉ नहीं करना है. आपको बस पिक लाइन से सिलेक्ट करते जाना है उधर वो कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे इन रेविट. डायमेंशन वही रहेगी जो एक्चुअली डायमेंशन कैच करेगा नहीं करेगा, मेरा हाँ मेन मकसद। करेगा करेगा. ओके। ओके सो इम्प्रूव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन. ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सबके लिए सबका अलग अलग दिमाग चलेगा. सो बेटर है अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट फाइल है तो नो मैटर व्हाट सबका अलग अलग राय रहेगी बट सबके पास एक ही फाइल रहेगी. सो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रहेगा. बेसिकली योर फाइल इज वन ओनली. तो बहुत वहां पे मेस क्रिएट नहीं होगा. सो इम्प्रूव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन. ऑल्सो सस्टेनेबल डिजाइन सपोर्ट. सो एज आई सेड ग्रीन बिल्डिंग्स ये बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है. सो सस्टेनेबल डिजाइन सपोर्ट आप रेविट से यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल डिजाइन सपोर्ट. मैम सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी में यही है जो आपने बता हम्म. रहे हैं कि हम्म. जैसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, सिविल हम्म. प्लस यूटिलिटी प्लस मेंटेनेंस प्लस सेफ्टी टीम्स। हम्म. इसमें 4 टीम्स काम करती है। जैसे कि एक कोई स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा डक्टिंग का भी काम चलेगा, प्लस हम्म. इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चलेगा, प्लस हमारा हम्म. सिविल का भी काम चलेगा, प्लस हमारा फायर हाइड्रेंट जितने भी होते हैं सेफ्टी हम्म. रूल्स, वो तो हम्म. चारों की ड्राइंग्स अलग अलग है। चारों को पुटअप करेंगे कि वो चारों का हम्म. डाटा अलग अलग लेगा या साथ में मर्ज कर सकता है उसको रेविट? तो चारों अलग अलग काम करेंगे अपने सिस्टम पे हम्म। बट एट द एंड ये चारों की फाइल्स एक में ही हम लिंक करेंगे. ये लिंक हो जाती है इसमें रेविट में मैम? यस. यस. ओके, थैंक यू। ओके सो career opportunities in Revit. So basic annual market growth in India is about 20 to 25%. As I said कि हेलो BIM हेलो। का yes. सॉरी सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन, बट आपने Yeah. अभी जैसे बोला कि ऑफिस अहमदाबाद में, मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, बट हम्म. अहमदाबाद में हमारा ऑफिस नहीं, हमारा ऑफिस भुवनेश्वर में। जस्ट फॉर क्लियरिंग यू गाइस, Okay. मैम को Okay. शायद पता नहीं होगा। यस एंड हम्म. वी आर टाई अप विथ आई एम अहमदाबाद, हम लोग बैक करती है। ठीक है। तो आपका अहमदाबाद से Thank एफिलिएशन है you. क्या, आपके अहमदाबाद हाँ, आइलैंड से? आई एम अहमदाबाद से हमारा मतलब टाई अप रहता है, हमें बैक करती हो। मैं समझा, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट देते हैं तो अहमदाबाद आइलैंड ज्वाइंट वेंचर देते हैं क्या? आई सर्टिफिकेशन आईएसओ का रहता है, बट आई एम अहमदाबाद हमें बैक करती है, वो भी आपका मेंशन रहेगा सर्टिफिकेट में। आपको सैंपल गया होगा, अगर आपका जो भी एजेंट है आपको भेजा होगा सैंपल एक सर्टिफिकेशन का। नहीं, हमको तो अभी कोई नहीं भेजा। एक बार डेमो दिखा देंगे क्या उसका प्लीज, लाइव? हाँ श्योर, मतलब मैं आपको उमेश सिंह, ओके मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको शेयर, कोई भी आपका है तो मैं आपका नंबर आप मुझे दे पाओगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा वो चीज़। दीप जी आपके पास मेरा नंबर है, आप एक बार मेरे को भी शेयर कर देना प्लीज। श्योर श्योर श्योर, आई विल शेयर यू या। आपको मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके ओके, मैं शेयर कर दूंगा। जी मैम, सॉरी मैम, कंटिन्यू। No, no problem. Thank you for correcting me. ओके सो एवरेज एनुअल सैलरी रेंज जो स्टार्ट होती है बेसिक. सो आपने अगर फ्रेशर हो और आपने रेविट जस्ट सीखा है एंड यू आर गोइंग इनटू द मार्केट सो इट वुड बी अराउंड 3.5 लाख टू 12. की रोल्स एंड इंडस्ट्रीज. सो जैसे अगर आप रेविट सीख के जाते हो तो यू कैन स्टार्ट एज अ रेविट ड्राफ्टर.
eventually BIM coordinator, BIM manager, project manager. Okay. And industries which are there currently जो है architectural firms, construction companies, MEP consultants. You can even work as a freelancer. There are many, opportunities available in the market for a freelancer as well. Now, top 10 industries for BIM architecture careers. Architecture, structure, MEP, whatever. So, architecture, urban planning, construction, infrastructure, then real estate, very important. जहाँ पे real estate are majorly involved into BIM because उनको कुछ mandates government through compulsory है जो BIM through ही उनको submit करने होते हैं. Engineering consulting, facility management, civil engineering and transportation, healthcare facility, educational institutional, obviously schools and all are getting, very, उसमें भी green चीजें involved हो रही है. So there also you can take help of BIM. Environmental design and sustainability and government as well as public sectors. So public sectors may be public works, maybe government is creating certain mandates for which you need to incorporate BIM within your projects. Okay. So these are some example जहाँ पे BIM useful है and use हो रहा है actual industry में. Now how to build up a career in Revit सुसु का or लिस्ट है hmm? सोनू बहुत सुसु का लिस्ट So रवि formal education. मेरा क्लास So है ना सोनू basically, you can pursue your degrees in architecture, civil engineering, or related disciplines. So as I said, architecture, structure, MEP, जो भी जिसमें आपको स्पेशलाइज करना है आप कर सकते हो. रेविट अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना चालू करो तो उसमें ये चारों डिसिप्लिन है. भले आप एक ही लो बट चारों डिसिप्लिन है. यू कैन सिलेक्ट योर स्पेशलाइजेशन. मैम ये प्रोफिशिएंट प्रोडक्शन में भी काम करता है क्या? जैसे हाँ. एग्जांपल मैंने सिविल टीम से हूँ, मैंने एक शॉप बनाई है, एग्जांपल मशीन शॉप. हम्म ठीक है, अगर मैं मशीन शॉप में मेरे को मशीन अलाइन करनी है फॉर अ हम्म व्हीकल अरेंजमेंट कि मेरा प्रोडक्शन चलेगा इसके अंदर, तो प्रोडक्शन के जो सारे पॉइंट्स होते हैं उनकी लाइन क्रिएट करना, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है क्या? उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होगा, इन्वेंटर ओके. और एंड व्हीकल ट्रैकिंग. तो वो भी बिम बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है बट वो सॉफ्टवेयर अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाइन में चला जाएगा तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होगा. So proficiency and projects. So you can gain expertise through Autodesk certification and even courses which are available here. So which will help you gain proficiency and build up your projects. Now portfolio development. जब आपका ये कोर्स हो जाता है तो कोर्स के बाद आपको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना होगा विच विल काउंट एज योर पोर्टफोलियो डेवलपमेंट. तो आप आपका पोर्टफोलियो बना के जब भी आप यू आर applying somewhere, you can show it as your portfolio. Okay. And obviously industry networking, LinkedIn, Instagram, इन सब पे जो इंडस्ट्री इवेंट्स है, फोरम्स है, प्रोफेशनल ग्रुप्स है, इनसे कनेक्टेड रहोगे. सो यू कैन डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड विद देम एंड बिल्ड अप अ करियर इनटू BIM once your course and everything is done. Professional certifications and continuous learning. So as I said, Autodesk certified professional. Then staying updated with your BIM standards, which is ISO 19650. Complementary skills like once Revit हो जाता है, then Dynamo is there, Navisworks is there, project management is there. ये सब चीजें आप once एक आपका जो बेसिक सॉफ्टवेयर हो जाता है उसके बाद स्पेशलाइज करते जा सकते हो. And finally, opportunities. You can explore freelancing and entrepreneurship in your BIM consulting. You can even work as a BIM consultant या फिर as I said freelancing की opportunities भी ले सकते हो. Now short project example. मैं Revit में भी आपको बताऊंगी लाइव, बट उसके पहले जस्ट ये जो रेसिडेंशियल व्हाट यू कैन से बिल्डिंग मॉडल है. So this is a basic 3-storied building जिसमें architecture, structure, MEP तीनों incorporate हुआ है. And detailed 3D model of doors, windows, HVAC system and plumbing system. इसमें से
resolved over 15 design conflicts. So जैसे मैंने बोला था clash detection. So now जब ये सब इकट्ठा आ जाता है, obviously there would be certain clashes, right? तो मैम ये मेरे को एक clash चीज हम बताइए आप, हम्म सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं पूछ रहा या हूँ कि आप एमईपी, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट तीनों को कैसे कस्टमाइजेशन कर पाते हैं आप रेविट सी में? हाउ टू कस्टमाइजेशन नहीं, या सो बेसिक एक ही इंसान ये सब नहीं करता, देर आर टीम्स इन्वॉल्व। तो आर्किटेक्चरल टीम अलग होती है, स्ट्रक्चर एमईपीएफ की अलग होती है। नाउ हाँ जी, हाँ जी। सबके लिए प्लान्स एक ही रहेंगे, डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे बिकॉज बिल्डिंग उतनी ही है, बस आपके सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। जैसे आर्किटेक्चर वाला सिर्फ वॉल डोर विंडो यही फिट करेगा, फ्लोर स्ट्रक्चर वाला बीम कॉलम फ्लोरिंग स्लैब यही करेगा, एंड एमईपी वाला ये जो आप सिस्टम्स देख रहे हो पाइपिंग वो हम्म। सब फिट करेगा। नाउ ये सब हम्म। चीजें ऑब्वियसली वॉल तो डबल अप नहीं हो रही है बिकॉज आर्किटेक्चर वाले ने आर्किटेक्ट ने ही डाली है। तो ये सब चीजें इकट्ठे आने के बाद कोऑर्डिनेट हो जाती है इफ योर मॉडल इज करेक्ट, योर डिमेंशंस आर करेक्ट। तो आप मेरे को बताइए, यदि एज ए सीनियर प्रोजेक्ट हेड, तो एक हम्म तो मेरे को P6 मतलब प्राइमर वीरा ठीक है, हमको लगता ही हम्म एक्चुअली, उसके हम्म साथ और क्या बेस्ट करना चाहिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो सीनियर लेवल पे? सो प्राइमावेरा अगर आप यूज कर रहे हो तो आई गेस नेविसवर्क्स वुड बी गुड फॉर यू, बिकॉज नेविसवर्क्स से देन आप टाइम एंड कॉस्ट भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ, बजटिंग कॉस्टिंग में। यस, तो वो बजटिंग कॉस्टिंग इसमें निकलता है क्या रेविट में? रेविट में निकलता है बट नेविसवर्क्स में और एडवांस लेवल पे निकलेगा। ओके। और ये कितना ड्यूरेशन, इसको कितना टाइम लगता है रेविट को? रेविट विल टेक यू अराउंड, सो जैसे अगर आप एडवांस जाते हो तो इट विल टेक यू अराउंड 4-5 months, और अगर बेसिक लेते हो तो 3 months। ओके। अभी कोई यदि स्ट्रक्चर डिजाइनर है तो उसको मास्टर भी हम्म एमटेक में करना पड़ेगा फिर? सो अगर सी जो थेरोटिकल नॉलेज है वो आपको मास्टर से मिलेगा, बट जो बेसिक हम्म। लर्निंग सॉफ्टवेयर का लर्निंग है वो आपको ऐसे कोर्सेज से ही मिलेगा। बिकॉज आप अगर डिग्री लेने जाओगे तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर इन डेप्थ नहीं सिखाया जाता, वहां पे थेरोटिकल बराबर। नॉलेज ज्यादा होता है। हम्म। नहीं तो वही डिमांड तो एक्चुअली मार्केट में बहुत आती है कि स्ट्रक्चर हाँ डिजाइनर, प्लानिंग डिजाइनर, है ना? इस तरह की डिमांड तो हाँ, बहुत तो आ रही है। इन इन चीजों के लिए आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से आना जरूरी है। थेरोटिकल इज बराबर। इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूंगी थेरोटिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थेरोटिकल का बेस होके आपको सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। ओके। हाँ, स्किल अच्छा, यदि स्किल आप में अच्छा है तो ऑटोमेटिक डिमांड है आपके मार्केट में, ऐसा नहीं है? यस यस। ओके, तो रेविट 3 मंथ और ये प्राइमावीरा 1 मंथ, तो 4 मंथ लगते हैं। प्राइमावेरा हाँ। ओके, सॉरी, यस, प्लीज प्लीज नो कंटिन्यू। वरीज नो वरीज। सो प्रोजेक्ट हाइलाइट्स एंड आउटकम्स, जो प्रोजेक्ट हमने देखा, सो उसमें से आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग बिम क्या क्या बेनिफिट्स हुए। सो 40% फास्टर डिजाइन कोऑर्डिनेशन। सी ये सब साइमल्टेनियसली चल रहा है आपका, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी, ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट करेगा फिर स्ट्रक्चर वाला करेगा, नो, ऑल दिस इज गोइंग साइमल्टेनियसली। सो 40% फास्टर डिजाइन कोऑर्डिनेशन, तीनों जो क्या कहते हैं कोलैबोरेट हुए वो एक साथ हुए। ओके, देन 12% लोअर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। सो बेसिक जो आपका मटेरियल्स का एस्टिमेशन था, सो एज आई सेड टाइल्स मुझे ऑर्डर करनी है तो आई नो वेरी वेल कि मुझे इतनी इतनी टाइल्स लगेंगी, 1-2% अगर मैं वेस्टेज भी पकड़ लूं तो उतना 1-2% ज्यादा, एंड आई नो दी कॉस्ट ऑल्सो कि इतनी टाइल्स ऑर्डर करने के लिए मुझे इतने पैसे लग रहे हैं, सो आई हैव बजट विथ। एनहांस्ड क्लाइंट अप्रूवल्स, सो विजुअलाइजेशंस के साथ जब आप क्लाइंट्स को एक आउटकम बताओगे तो यू कैन गेट क्विकर क्लाइंट फीडबैक एंड अप्रूवल्स। इफ इट इज अपीलिंग, क्लाइंट को अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंट फीडबैक एंड अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। इंस्टेड ऑफ आप उसको कैड प्लान बताते रहो, अगर आप उसको अच्छा सा एक विजुअलाइजेशन बता दो तो ऑब्वियसली इट वुड क्रिएट अ मच इम्पैक्ट मैम एंड मेरा एक स्मूथ। केस में एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक्चुअली हम ऐसी जगह कुछ यहाँ काम करते हैं जहाँ हार्ड वर्क बहुत होता है, ओके
एक्चुअली मेरा एक खुद का एक प्लांट बनना है, वहाँ पे हार्ड रॉक ज़्यादा है और हमारी हम्म कंसल्टेंसी टीम है एस एन पिंगले फॉर ओके अ पुणे टीम। तो हम उनके हम्म क्लाइंट है, वो हमको काफ़ी ड्राइंग्स दिखाते हैं कि सर हम्म इतना एक्सेवेशंस होगा, इसमें इतना हम्म गहराई तक खुदाई देगी। तो हम हाउ टू मेजर एंड हाउ टू करेक्ट इट, हम ये कैसे पता करें कि हाँ ये हमको जो बता रहा है कि हाँ इतना ही हमारा इतना खुदाई होगी, इतना ही हमारा एक्सेवेशन होगा, इतनी ही हमारी फिलिंग आएगी, ये हमारा रेविट को बता पाएगा कि यहाँ पे हार्ड रॉक है कि भाई हाँ, हमारी इतनी डेप्थ होगी इसमें, तो तो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर इसके लिए अच्छा आपको होगा। सर्वे सर्वे प्लान्स मिलते हैं इसके लिए? तो इस रेविट में बॉस वो है क्या सर्वे मेरे प्लान नहीं, उसका ना एसबीसी टेस्ट होगा, पहले सॉइल वेयरिंग टेस्ट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कितना लोड लेगा। जब एसबीसी पता चले आपको कि 15 मंजिल बिल्डिंग बनाना है और वो सस्टेंस कर रहा है यदि, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तभी आप वहाँ पे एक्सकेवेशन स्टॉप कर सकते हो। अदरवाइज वो टोटली अगर वहाँ एक्सकेवेशन सॉइल ही नहीं हो, अगर हार्ड रॉक ही है तो मोस्टली। हार्ड रॉक के अंदर भी एक्सकेवेट करना पड़ता है, यदि वो सस्टेन कर पाता है रॉक की उस लेवल का लोड की नहीं, तो उसके अंदर और वो डेप्थ में डालते हैं फिर कि आपको 1 मीटर और अंदर जाना है उसका हार्ड रॉक के अंदर। यदि वो सस्टेन्स करने लगेगा उसका सैंपल, तो वो स्टॉप करा देगा। ओके। वो एसबीसी टेस्ट होगा, उसको क्वालिटी वाले चेकिंग वाले आएंगे आपके, जो भी लैब हम्म वाले हम्म स्ट्रक्चर के, वो चेक कर देंगे आपको, एसबीसी टेस्ट करके रिपोर्ट दे देंगे कि आपका यहाँ तक सस्टेंस कर पाएगा स्ट्रक्चर, इतना आपको करना है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सवेट करना है, उतना स्टॉप करना है आपको। ओके। और एंड ठीक, डन डन, श्योर। फाइनल स्मूथ हैंडओवर। सो जब मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअल वर्चुअल प्रोजेक्ट बन जाता है और वो ऑन साइट भी कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो बिम डेटा के साथ जो जो हमने जनरेट किया है उसमें से, वो सबके साथ हम फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए अच्छे से हैंड ओवर हमारे ओनर को दे सकते हैं। ओके। So lessons learned and best practices is critical for setting up project success from the outset. So early BIM planning चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आधा CAD में बना लिया एंड देन फिर आप सोचते हो नहीं 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 अभी रेविट पे जाना है। नो, हैव अ प्रॉपर प्लान कि इतना इतने के बाद हमको रेविट के प्लेटफॉर्म पर जाना ही है। ओके। रेगुलर कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं है कि टीम्स अपना अपना काम करिए। सर्टेन 15 डेज 10 डेज में आपका कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टू नो आपका किस लेवल तक वो रेविट मॉडल बना है, टू एंश्योर अलाइनमेंट। ऐसा नहीं है कि पूरा 2 महीने बाद फिर आप इकट्ठा आ रहे हो सब टीम्स। ऑब्वियसली देर वुड बी मोर क्लैशेस। जो 15 डेज में आप क्लैशेस कम, मतलब पहले पहले ही रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप 3 महीना वेट करो एंड देन कोऑर्डिनेशन करो। ऑर्गेनाइज टेम्पलेट्स, सो यू कैन कीप वेल ऑर्गेनाइज रेविट फैमिलीज। जो जो चीजें आपको आपके प्रोजेक्ट में चाहिए वो एज ए टेम्पलेट बना के आप रख सकते हो, जो आप मल्टीपल टाइम्स आपके अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। एंड लेवरेज ऑटोमेशन, जो रिडंडेंट टास्क है, जो टास्क बार बार करने पड़ रहे हैं, वो टूल्स एंड प्लगइन्स विच आर अवेलेबल विथ रेविट, उनके साथ आप आपकी प्रोडक्टिविटी और वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हो इजीली। ओके। So, sorry, सो ma'am. या Sorry, ma'am. Yeah. Do Revit offer BIM for free? Is it सॉरी। for free or is it for free BIM? Is it for free or do you actually have to pay some extra fee to actually use BIM in Revit? So yes, basically you can't use BIM. BIM is a platform on which Revit is based. And yes, for Revit software, you need to pay amount to use it. And also to, get the training and certifications, you need to pay certain amount. Okay, okay, ma'am. Thank you. Yeah, yeah. हेलो So मैम। yes. मेरा एक क्वेश्चन था मैम। Hmm. एलओडी को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? बिल्डिंग में 6 टाइप ऑफ एलओडी है, 100, 200, 300, Hmm. 350, 400 एंड 400 500। and 500. Yeah. तो अब So उसको बिल्डिंग में कैसे एग्जांपल देकर कैसे कर सकते हैं? 100 का एग्जांपल, 200 का। देखो, अगर हमने नॉर्मल एक बिल्डिंग लिया, या फिर बिल्डिंग पे जाने से बेटर है अगर मैंने सिर्फ एक डोर का एग्जांपल लिया या विंडो का एग्जांपल लिया, ठीक ठीक है। तो एलओडी इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नाउ मेरे दिमाग में एक जस्ट स्कीमेटिक कंसेप्चुअल स्टेज है अभी, ठीक है। सो दैट इज एलओडी 100। जरूरी नहीं मेरे
अभी मैं एक क्लाइंट हूँ, राइट? सपोजिंग आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, नॉट एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एमईपी, कोई भी नहीं हूँ, मैं क्लाइंट हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल है मुझे इधर एक डोर चाहिए, तो मेरे दिमाग में ख्याल है दैट इज एलओडी 100। नाउ दिमाग में ख्याल है मतलब क्या, डोर है तो डोर एक सपोज रेक्टेंगल है, ठीक है, दैट इज योर एलओडी 100। नाउ 200 में क्या, मैं शेप डिसाइड करूंगी, भले रेक्टेंगल हो बट ऊपर से ऐसे डोम शेप भी हो सकता है। सो दैट इज माई 200, जिधर मैंने शेप डिसाइड किया, या फिर उसमें थोड़े से डिमेंशन डाले कि 1000 विड्थ है या 900 विड्थ है, ठीक है। नाउ 300 में मैं उसको एक्चुअल, व्हाट यू कैन से, एक्चुअल उसको एक डिमेंशन दिया मैंने, कुछ मटेरियल्स भी मैंने डिसाइड किए, ठीक है, कि वुडन फ्रेमिंग आएगा, बीच में ग्लास का ओपनिंग रहेगा, और डिटेल डालते जाऊंगी मैं। दैट इज योर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। 350 में कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन मतलब अभी डोर तो बस ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, उसको हिंजेस आएंगे, हुक्स आएंगे, साइड के कॉर्नर्स आएंगे, राइट? सो दैट विल कम इन योर 350। 400 में आपका पूरा फैब्रिकेशन आता है, राइट? या फिर असेंबलिंग, जैसे हिंजेस कोई और वेंडर से आएगा, प्लाईवुड कोई और वेंडर से आएगा, तो ये सब असेंबल होगा 400 में। एंड 500 में वो जैसे दिखने वाला है वैसे वहां पे कंस्ट्रक्ट होगा, दैट इज योर 500। सो दिस इज अबाउट एलओडी। एलओडी मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है। नाउ अगर क्लाइंट का जस्ट एक फेज चल रहा है स्कीमेटिक, तो मुझे एलओडी 500 या 400 तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं उतना डिटेल क्यों डालू उसमें, उतना मेरा टाइम वेस्ट करूँ, रिसोर्सेज वेस्ट करूँ। इट इज ओनली एलओडी 100। तो बस मुझे कंसेप्चुअल उसको एक नॉर्मल मासिंग करके उसको बताना है, भाई आपकी बिल्डिंग ऐसे ऐसे दिखेगी। सो दैट इज योर एलओडी 100, 200, 300, 350, 400 एंड 500। ओके ओके। मैम, और नाविस वर्क और डायनामो में क्या डिफरेंस क्या है उसका? Navisworks is basically used for आपका टाइम एंड कॉस्ट इंटीग्रेशन। सो अगर आपके पास बिम मॉडल रेडी है, उसमें आपको टाइम एंड कॉस्ट इंटीग्रेट करना है। रेविट मॉडल तो बन गया, ऑन साइट अभी तक बना नहीं है, तो मैं सपोज पहला स्लैब ये डेट को गिरेगा, दूसरा स्लैब ये डेट को गिरेगा, ये सब टाइम आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ नेविसवर्क्स। एंड कॉस्ट भी, कि मुझे सपोज फर्स्ट मंथ में इतना बजट है, सेकेंड मंथ में मुझे इतना कॉस्ट आने वाला है। सो ये सब आप नेविसवर्क्स में कर सकते हो। एंड डायनेमो इज मोर ऑफ यू क्रिएट नोड्स बेसिकली। सो डायनामो में जो चीजें रिपीटेडली, जैसे मेरी 20 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, उसमें हर वॉल से जो एक्सटीरियर वॉल्स है वो सेम है थ्रू एंड थ्रू, लेवल 1 से लेके लेवल 20 तक, राइट? तो मुझे बार बार डालना अगर वो अवॉइड करना है, तो मैं स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकती हूँ और उससे वो ऑटोमेट करा सकती हूँ रेविट को। सो वो आप डायनामो थ्रू कर सकते हो, जो भी रिपीटेड टास्क है वो आप डायनामो थ्रू करा सकते हो। एंड नेविसवर्क्स में टाइम एंड कॉस्ट डाल सकते हो। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट। आप दोनों का यूजेज सेम नहीं रख सकते। Hello. यस। Ma'am, I have a question that is LOD anyways related to our submissions like CD, DD, SD यस। submissions and यस। how they are related? And the second follow-up question on that is if we get a file from client and they say that we have to model in LOD 400 and they just don't mention the LOD in which they have file, but they provide the file. So how to identify that the file we have got is actually a 200, 300 or 350 file? That is the second follow-up question. Okay, so definitely LOD is linked with your stages of project. जैसे आपने बोला कि SD, schematic, design development, detailing, all those things, right? तो obviously LOD भी हर stage में अलग अलग output आपको देगा, okay? For each and every stages. So conceptual, then your schematic, design development, final delivery, okay? नाउ अगर आपको क्लाइंट ने बोला कि मुझे एलओडी 400 में चाहिए, ठीक है, एंड आपके पास फाइल्स आती है,
सो ऑब्वियसली फाइल्स आती है अगर वो विद डिमेंशंस है, अगर वो विद प्रॉपर व्हाट यू कैन से, इफ यू आर गेटिंग द कैड फाइल्स या फिर स्केचेस भी मिल रहे हैं सपोज पेपर पे, तो आपके पास अगर डिमेंशंस है, सब है, तो ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट अ डिटेल्ड रेविट मॉडल आउट ऑफ इट. ओके, नाउ सबमिशन की जब बारी आती है कि मुझे 400 में चाहिए, सो 400 इज योर बेसिक फैब्रिकेशन. ठीक है, नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि मैं फैब्रिकेशन भी अगर करके मुझे देना है बेसिकली. सो फैब्रिकेशन, सो 350 में तो आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है. अगेन अगर आपके पास सिर्फ आर्किटेक्चरल मॉडल है, स्ट्रक्चरल एमईपी नहीं है, तो 350 तक भी वो जाएगा ही नहीं, बिकॉज यू नीड द मॉडल्स फॉर इट, राइट? सो Okay. यू नीड टू बी आफ्टर द क्लाइंट टू प्रोवाइड यू दी डिटेल्स एट एंड, बिकॉज आप आपके मन से तो कुछ नहीं डालोगे उसमें. Correct, correct. यस. And is the like Kobe data also Hmm. included in LOD 400 or it's only included in when we go to LOD 500 So it or can both? be included through, I mean, you can start it with 400, but I Okay. would say once it is done on site, 500 would be a better answer for it. Okay. Yes. Thank you. Okay. Hello, ma'am. So, yes. एक्चुअली मैम ये पूछना था मैम, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मैम, Hmm. हम बीम को मैम एज ए रैबिट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे राइट नाउ मैम अभी ई टैब एंड स्टेप में वर्किंग चल रही है, तो मुझे वहां से मैं कैलकुलेशन करके देन रैबिट में आके काम करना पड़ेगा Sorry, can you repeat the question? मैम? जैसे कि एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मुझे ई Hmm. टैब में एंड स्टेप में काम करना पड़ रहा है, तो Hmm. मैम मैं उसको प्रॉपर मैम वहां से पूरा यूज करके, मतलब वहां से डेटा निकाल के उसको फिर मैं रैबिट में यूज करूंगा मैम, रैबिट हाँ. सॉफ्टवेयर रैबिट प्लेटफॉर्म में। So I'm not pretty sure कि ETAB से आपका CAD में एक्सपोर्ट होता है. Any नो idea? नो मैम। Okay. So if it's ETAB या फिर any other structural things, obviously आप Revit में ला सकते हो. There are different formats. So I'll be jumping to Revit only now. But yes, you can, what you can say, you can import those files into Revit and then work on it. I'll need to check with the formats, but yes, you can bring those files from your ETAB or the other software which you are using into Revit and then work on Revit. Ma'am, I guess Hmm. IFC can work. Yeah, I guess IFC can work if not CAD. I have asked one question. What is mean by Revit link? Okay, so as I said, there are different people working on the project. एक आर्किटेक्ट ही स्ट्रक्चर एमईपी सब नहीं करेगा, या फिर कॉन्टूर जो हमारे व्हाट यू कैन से साइट डेटा होता है वो भी एक ही इंसान नहीं करता, या फिर इवन एक प्रोजेक्ट भी लो बहुत वास्ट है तो एक ही इंसान पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. दैट टाइम हम प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं, राइट? एंड सी क्लाइंट को एक ही फाइल जाने वाली है. क्लाइंट को हम 10 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को 10 फाइल्स नहीं देंगे हम. सो भले रेविट की 10 फाइल्स बन रही है, एंड ऑब्वियसली इट इज एडवाइजेबल कि आप प्रोजेक्ट को ब्रेक करो. एक ही प्रोजेक्ट 1 GB 2 GB का नहीं बन सकता, राइट? फॉर इन दैट केस आप क्या करते हो, रेविट को प्रोजेक्ट को ब्रेक करते हो एंड एक मेन फाइल में ये 10 फाइल या फिर बची हुई 9 फाइल्स जो है वो आप रेविट में लिंक करते हो. सो दैट इज रेविट लिंकिंग. So you don't create only one project file. You can create 10, 20 project files, right? But फाइल एक ही मेन रहेगी और उसमें आप बाकी के फाइल्स लिंक करोगे. सो आपका प्रोजेक्ट साइज कम रहता है एंड इवेंचुअली क्रैश होना या फाइल हैवी होना, बंद पड़ जाना रेविट, ये सब अवॉइड कर सकते हो. दैट इज योर रेविट लिंकिंग. Okay. ओके. Ma'am, I have one more question related to nested families. यस. In nested families, when we make separate family and when we load it,
then we load it into a separate file which consists of all these sub elements, or we load it into one sub, like we have one sub So element file. you'll again have one main family, right? Mhm. Now in that family you'll what you can say, you'll link all the other families, so that will And- be on And that family should be a generic model family, or a, like if it's a kitchen family, and I want to nest all my cabinets, countertop, drawers, everything to one family, then the main family should be a generic model family, or should be a casework, or what family it should be? If it's related to kitchen, I would suggest casework. Okay, okay. If Okay. it's not related, जैसे बहुत अलग अलग चीजें हैं, then you can keep generic. But when it's related to kitchen, जहाँ पे आपको head top height लगेगा, नीचे का height लगेगा, that time I think casework would be a better option, ताकि आपको dimensioning and वो references मिले वहाँ पे. ओके ओके. एंड ये केस में जब हम नेस्ट कर रहे सारी फैमिलीज को, व्हाट हैपेंस, मोस्टली इसकी सबके पैरामीटर्स नहीं विजिबल होते हैं उस मेन फैमिली में, तो वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? तो आपको वो जो नेस्टेड फैमिली है उसमें वो पैरामीटर्स ऑन रखने पड़ते हैं, ताकि वो इधर आके आपको ऑन मिले, या फिर उनको हमको विजिबल रखना है. वो बाजू में एक छोटा सा बॉक्स Yes, आता है, बाहर correct. से विजिबल करोगे तो वो आपके मेन फैमिली में विजिबल रहेगा. ओके ओके, थैंक यू सो मच. ओके. मैम इसमें एक क्वेश्चन है मेरा हाँ. कि इसमें एक्चुअली इंटीरियर वर्क जो अपन करते हैं, जिप्सम हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, वुडन फ्रेमिंग हो गया, पैनलिंग हो गया, ये टोटली इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं, फर्नीचर हो गया इंक्लूडेड साथ में, ये हमको ये फोटोज वगैरह या डायमेंशन है या फिर उसकी टेबल का लुकआउट 3D मॉडल दिखाना है, ये इंक्लूड इसी में हो सकता है या बाहर से कुछ पार्ट्स उठा के इसमें डालना होता है अपन को? नहीं, आप इसमें क्रिएट कर सकते हो डिटेलिंग. अगर आपको वो लेवल तक चाहिए तो आप 2D भी इसमें क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके पास कैड में अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो कैड इधर इंपोर्ट करके भी रख सकते ओके. हो. Yes, ma'am. Yes. What is mean by scan to beam and how to use in Revit in scan to beam? So scan to BIM is again a different vast other term you can say. So basic, if I have to give an simple example, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल ले लो या फिर कोई भी फोर्ट्स ले लो, राइट? इनका अगर हमको अभी रिस्टोरेशन करना है, या फिर यहाँ पे कुछ खराबी अगर हुई है और हमको रिपेयर करना है, तो आपके पास कैड प्लान्स अवेलेबल नहीं है, या फिर मंदिर भी, कोई मंदिर, मॉस्क, कुछ भी ले लो, इनके कैड प्लान्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास. एंड यू कांट break the national monument also, right? In that case, जहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, right? In that case हम क्या करते हैं, 3D स्कैनर्स होते हैं, ओके? वो 3D स्कैनर्स हम 360 डिग्रीज ये रोटेट करके उनका स्कैनिंग लेते हैं. इफ आई हैव टू शो यू, सो उनका स्कैनिंग करते हैं. एंड जस्ट अ सेकेंड. मैम स्कैनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? बीम 360 क्या? स्कैनिंग के लिए नहीं, बिम 360 नहीं, लीडार प्रोसेस से लेजर, वो स्कैनर्स ही अलग होते हैं, वो कुछ बिम से रिलेटेड नहीं है, वो स्कैनर्स ही अलग होते हैं. वो स्कैनर्स, हाँ, लिडार बेस्ड स्कैनर्स होते हैं. ओके. सो वेस्ट वो लेते हैं एंड रिकैप में ये सब. सो इफ यू सी, सपोज दिस इमेज, ओके. सो बेसिक ऐसी कुछ इमेजेस आपको मिलेगी, पॉइंट क्लाउड. सो बेसिक ऐसे पॉइंट 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 का ऐसे डेटा मिलेगा आपको, राइट? सो ये सब अगेन ऐसे पूरा नहीं मिलता, क्योंकि वो 360 डिग्रीज रोटेट होता है, तो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बहुत बड़ा फाइल्स रहती है वो आपको टुगेदर स्टिच करनी पड़ती है. सो समथिंग लाइक दिस, ये व्यू से ऐसा मिला, दूसरे व्यू से कुछ और मिला,
राइट? तो रिकैप करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो स्टिच करते हैं टुगेदर एंड देन आप रेविट में लाके आपका एक्चुअल मतलब नॉट कंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग स्टार्ट करते हो. So if you happen to see, this is your the laser view, and this is your built model in Revit. जी So मैम, मैं क्वेश्चन हाँ, हाँ, जी जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ और काफ़ी हम्म, टाइम से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ, और हम्म, अभी पिछले 6 मंथ से रैबिट पे प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें ओके. मॉडल बनाई भी हैं, लेकिन मैं जॉब गेन नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सो आपको पहले आई वुड सजेस्ट, अगर आपको रेविट ऑलरेडी आता है तो एक तो यू नीड सर्टन सर्टिफिकेशन. पहली बात वो सर्टिफिकेशन ओके के बाद आपका कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे पोर्टफोलियो डेवलप करो. सो व्हेन यू गो टू एन इंटरव्यू या जहाँ अप्लाई करते हो, वहां पे आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो. बिकॉज आप बोलोगे मुझे रेविट आता है, बट सामने वाले को तभी समझेगा जब आप कुछ उसको बताओगे कि मैंने ये किया पोर्टफोलियो है. मतलब बनाया है मैंने, लेकिन प्रॉपर शायद नहीं हो। तो उसमें मे बी. पोर्टफोलियो में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सो एक तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बेटर. देन उसमें सेक्शन व्यूज, डिटेल व्यूज, एलिवेशंस, 3D व्यूज, विजुअलाइजेशन, जो जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो थोड़े बहुत इंक्लूड होने चाहिए. ओके ताकि ओके सामने वाला अगर पूछे कि ये किधर है, यू डेफिनेटली हैव अ आंसर कि ये इसमें इधर क्रिएट किया है. तो वैसे सब चीजें अगर इनकॉर्पोरेटेड हो तो आई थिंक देन वो पोर्टफोलियो फिर कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. ओके ओके ओके। लेकिन डिग्री के से भी कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिग्री मैक्सिमम जगह डिग्री मांगते हैं। सी, मैं वही कह रही हूँ, डिग्री होना इज एन एडवांटेज, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर उससे भी बेटर आता है तो डिग्री मायने नहीं रखेगी. इवन इफ यू आर अ फ्रेशर और आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज प्रॉपर है, स्किल सेट प्रॉपरली डेवलप्ड है, तो मे बी आपको डिग्री कोई नहीं मांगेगा. बट वो आपको दिखाते आना चाहिए कि मैं सॉफ्टवेयर में इतना प्रो हूँ. ओके मैम, यस. एक ये क्वेश्चन था एक्चुअली. मैं ऑलरेडी एनरोल कर चुका हूँ, आपकी हम्म, टीम से दीप जी को पता है. ओके. मेरा एक क्वेरी ये है कि एक्चुअली ऐसे मान लीजिए कि आपने हमको 2 महीने का ये कोर्स दिया, हम्म, उसमें हमारा क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे? सॉफ्टवेयर हमारा कब तक रहेगा? हम्म, हमारे कितने मतलब कहते हैं ना सेशन चलते हैं ना मैम, जैसे कि आज तुमको हम्म, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, नेक्स्ट डे हम्म, आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है. हम्म, ठीक है, लाइफ टाइम हम और सीखना चाहते हैं तो हमारा आगे क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपकी टीम के थ्रू? ये ओके, सारी चीजें मैम मेरे को एक्चुअली इसमें क्लियर करना है. ओके. सो आई गेस ऑपरेशंस टीम बेटर आंसर कर पाएगी बिकॉज वो शेड्यूल करते हैं. बट विथ रिगार्ड्स टू डाउट सॉल्विंग, अगर मतलब अगर आप मेरे मेरे अंडर मेरे टीम में रहते हो, तो ऑब्वियसली मेरा पैटर्न ये है कि मैं टूल्स सिखाती हूँ थोड़े, एंड देन मैं डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने बोलती हूँ. बिकॉज उसमें ही समझ आएगा कि आपको टूल्स कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं, एंड उनका यूजेज क्या है. मैं ऐसे टूल्स बताते जाऊंगी, आपको समझ जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू यूजेज तभी समझेगा. सो बेस्ड ऑन दैट आपका उधर ही क्लियर हो जाता है कि मुझे वो टूल समझ रहा है क्या, और मैं किधर किधर वो टूल यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. ओके. सेकेंडली, विथ रिगार्ड्स टू डाउट सॉल्विंग, अगर जैसे जैसे हमारा एक एक मॉड्यूल होगा, आपको असाइनमेंट्स, छोटे मोटे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. बेस्ड ऑन दैट आपको अगर वो असाइनमेंट, सी ऑब्वियसली वो टू वे होगा, मैं भले आपको दे दूं और आपने वो असाइनमेंट किया है नहीं, तो वो आपके लिए, मुझे तो कोई इतना फर्क नहीं गिरेगा, बट आपको ऑब्वियसली फर्क गिरेगा. तो अगर वो असाइनमेंट आप प्रॉपरली सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब यू आर गुड टू गो अहेड. अगर आपको वो सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, ऑब्वियसली आई एम देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. एंड ऐसा नहीं है एक बार बता दिया तो मेरा काम खत्म हो गया. यू कैन कम अप विद डाउट्स. आई तो थिंक कि वो इंटरेक्टिव होना चाहिए तभी मजा आए. बिकॉज ऑनलाइन तो ऐसे मैं सिखाते जाऊं, आप बोलोगे समझा समझा, उसमें कोई मजा नहीं है.
So आपका पहला क्वेश्चन आई गेस ऑपरेशंस टीम विल बी बेटर टू आंसर, एंड सेकेंडली विथ रिगार्ड्स टू डाउट सॉल्विंग, या आप किधर अटकते हो, या आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपको लगता है कि मुझे ये चीज नहीं जम रही है, यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू मी, या फिर जो भी आपका ट्रेनर रहेगा उनको। मैम अगर मान लीजिए किसी को ऑटोकैड नहीं आता, टोटली उसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, अगर वो इसमें एनरोल करता है, तो बेसिक उसका बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे अपन, या कि सीधा रैबिट पे हम अपना बात चालू? बेसिक से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड कि सबको ऑटो कैड आता है, सबने ऑटो कैड यूज किया है, ऐसे नहीं है, डायरेक्टली रेविट भी सीखते हैं। अगर कैड आता है तो वेल एंड गुड, एक एडवांटेज जरूर हो जाता है कि मुझे बेसिक्स थोड़े से पता होते, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको कैड आना ही चाहिए, एकदम प्रो आना ही चाहिए, ऐसे नहीं है। तो दैट वुड बी अ बेटर आंसर कि कैड आता है तो एक एडवांटेज, एक प्लस पॉइंट आपके पास रहता है, बट नहीं आता है तो भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करें, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके मैम। आपको Uh, रेफरेंसेस जरूर दिए जाएंगे कि यू आर डू यू नो ये हम कैड में ऐसे यूज करते हैं, अगर यूज किया है वेल एंड गुड, नहीं यूज किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मुझे हेलो मैम, पूछना था कि दिस इज सचिन. एक ओके, पहले गो अहेड मीना मीन. कंप्लीट। हाँ हाँ। यस, गो अहेड. एक्चुअली मुझे पूछना था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिम मैनेजमेंट के कोई कोर्सेस है क्या, मतलब कमिंग मंथ्स में, या अगेन कोई आई गेस अच्छा सोर्स है जहाँ से कर सकते हैं? सी, इवन इफ यू वांट टू गेट टू दैट लेवल, आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप एक रेविट, नेविसवर्क्स, ये चीजें पहले सीखो, एंड ऑब्वियसली आई बिलीव कि प्रोट्रेनी हैज दोज कोर्सेज आल्सो, सो वंस you go through certain basics, then you can jump on to those. मैम Yeah. मेरा एक्चुअली मतलब नेविस वर्क्स एंड रेविट ये मुझे थोड़ा आता है, एंड मतलब मुझे उसके आगे बढ़ना था, मतलब उसके आगे सीखना था। Okay, so you can take up a proper BIM का course also. कोई सोर्सेस आप सजेस्ट कर I'll सकते हैं? need to search. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, Yeah, नो प्रॉब्लम। yeah. हेलो मैम, Yes. Sachin this side. Hmm. Actually, I have a query kind like I have already enrolled with your course in Okay. Pro Trainee, Yeah. and before that, I have also done a course with Novator, that was named as BIM professional course for civil engineers. Okay. In that, I have learned Revit and Civil 3D and Navisworks, and I got 3 or 4 classes of Dynamo, 3 or 4 classes of Tekla, and then 3 or 4 classes of ACC, and 3 or 4 classes of I guess Construction Cloud. Okay. And in that same course, I have a project for metro station. That was actual project, but it was done before our enrollment. It was a Penkoran to Senyan metro project located in Indonesia. Okay. I have a portfolio also, but as you mentioned before to someone, that portfolio has all those things like section views and sorry, and all other details. All those details I have in my portfolio, but Okay. till now I didn't get a single call from any of the company. And Okay. also I am working in construction industry since last 10 years. Okay. And Okay. then I came through this Pro Trainee through LinkedIn, and got a call from Adil Bhai, and he suggests me for this. So I just want to ask, is it really helpful? I should go for this, or I'm just wasting my time? See, I won't say you're wasting your time. Obviously,
maybe there are certain things I don't know how Novator goes, how they teach. So definitely I can't comment on that. But yes, here you'll be getting, I won't say a better quality would be rude, but obviously you'll be getting something maybe which is not done over there. And about your portfolio, I haven't seen it, so I can't comment on that. But obviously, I think if all these things are included, well and good. I just wanted to ask if you have applied somewhere and वहाँ पे tool test हुई है और आप किधर you got I mean what you can say आप कहाँ stuck हो गए tool test करते वक्त या फिर कुछ commands या फिर कुछ जिससे आप familiar नहीं हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे कुछ हुआ है? Sorry, I don't know why my Wi-Fi disconnected. Oh, okay. So I'm saying कि as you said, portfolio has everything well and good. बट लाइक एज यू सेड कि आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल हो पाई या किसी का कॉल नहीं आया, तो ऐसे जहाँ पे आपने कहा अप्लाई किया होगा वहां पे आपको टूल टेस्ट देने बोला गया होगा मे बी बिकॉज Ma'am, मेजोरिटी फर्म्स. I didn't even get a call from them. I didn't even get a mail back from them. ओके, मे बी देन समथिंग इज रॉन्ग विथ योर पोर्टफोलियो, मे This might be possible. बी. But that Novator team has said it is almost good. They didn't say this is wrong, this is wrong. But they No, just said, nothing is wrong. See, nothing is okay. wrong. The project, so the project is as it is, right? Yes. Nothing is wrong. It's more about what detailing you have, what quality you are giving out. It's more Okay. of that. Okay. So maybe we can have a check on your portfolio and we can develop it. Maybe. Okay. Yeah. Okay. Please, ma'am, keep in touch. Yeah, sure. If you can provide your LinkedIn, it will be bad. Wonderful. Yeah, I can provide you my LinkedIn profile. Okay. Thank you so I'll much, ma'am. put down in chat. Yeah. Okay. Thank you so much, ma'am. Hello, ma'am. Yes. How many pages for portfolio suggest you? No limit as such, but I think your portfolio should have more than minimum, I would say 10 or more than 10. Minimum 10. Any other questions? क्या अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा सकते हैं? हाँ, आप मुझे भेज सकते हो. I तो can. आपसे कैसे कांटेक्ट होगा मैम? मैं आपको मेरा लिंक्डइन एक सेकेंड मैं जस्ट मेरा लिंक्डइन देती हूँ यहाँ पे एंड मे बी यू कैन DM मी. Just a second. Mm, I have message. I think message में है. So आपका जो भी portfolio है या even if you have certain doubts, you can reach out to me. Okay, thank you. Those who have enrolled obviously will be in touch, but those who haven't enrolled yet, they can definitely think about it. And any more questions? I'm already following you since last 3 or 4 months, ma'am. Oh, okay. Before Okay. enrolling. Okay. Good to know. मैम लैपटॉप का मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए बिम के लिए? तो
सो अगेन बीम सॉफ्टवेयर नहीं है तो बीम के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, बट यार रेविट के लिए चाहिए है। तो रेविट के लिए आई वुड सजेस्ट, मैं वो भी भेज सकती हूँ, लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। बट हाँ, 8 GB से 16 GB इज अबाउट वो रैम एंड ऑल दोज थिंग्स। ग्राफिक कार्ड एंड रैम आर मोर इम्पोर्टेंट because quality wise. So I'll just open up a sample project जो Revit का ही है। सो वो सब चीजों में आपका ग्राफिक कार्ड रैम बहुत यूटिलाइज होता है। सो आई गेस वो ही आपको 16 GB 32 GB तक चाहिए। मैम मुझे नया लैपटॉप चाहिए, तो कितनी रेंज तक का मिल जाएगा बिम के लिए यूज करने के लिए? आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट द रेंज बिकॉज मुझे करंट रेट्स तो नहीं पता है, बट आई कांट, आई मीन आई गेस 30 अबाव ही जाएगा, 30-40 अबाव मिनिमम। ओके मैम, थैंक यू। या Ma'am, how to use in MAPF system in a building? so basically if I happen to come here, systems, okay, so these are your MEPF elements, okay. So your ducting, your mechanical equipments, your piping. So you need to basically fix all those elements within your model. So if I come to architecture, मेरे पास wall, door, window and बाकी के जो libraries है वो है। If I come to structure, मेरे पास beam है, structural wall है, column है, slabs है, floor है, steel connections है, right? When I come to steel again, मेरे पास steel के connections है, and when I come to systems, ये मेरे MEP elements। तो ये आपको बेसिक, कोई भी प्लान व्यू में जाना है। 3D व्यू हम सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, हम शेडेड में ही काम करते हैं, रियलिस्टिक सिर्फ मटेरियल्स चेक करने के लिए करते हैं। बाकी जो भी काम हमको करना है हम लेवल्स में ही करते हैं। सो बेसिकली और प्लान व्यूज में ही हम काम करते हैं। सो इधर अगर आपको कुछ पाइपिंग डालना है तो आपको प्लान व्यू में आना है, आपका पाइप सिलेक्ट करके आपको पाइपिंग प्लेस करना है, दैट्स इट। मैम एक एग्जांपल, अगर अपन ने फायर फाइटिंग का पाइप चूज किया तो वो पाइप मतलब कैसा होना चाहिए और उस वो कैसे डिटेलिंग करना चाहिए? See, I am not much well versed with MEP, मेरा आर्किटेक्चरल डोमेन है, बट जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो आपको MEP, जो MEP इंजीनियर होता है वो ही देता है। बाकी जो पाइप प्लेसिंग है, सो इफ आई टेक अ पाइप, ओके, तो ये सब चीजें जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको इंजीनियर देगा। इफ यू आर एन इंजीनियर तो आपको ये कैलकुलेशंस जनरली मालूम होते हैं, जैसे वॉल का मुझे पता है वॉल का स्टैंडर्ड हाइट क्या होना चाहिए, वो सब चीजें, राइट। तो इफ यू आर एन इंजीनियर, यू I mean you should be knowing these figures, right? और क्या पाइप का सेगमेंट है वो सब चीजें। और अगर आप मॉडलर हो या फिर जैसे आप रेविट मॉडलर हो तो आपको ये चीजें आपके इंजीनियर थ्रू मिलनी चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग, यू हैव द फुल राइट टू क्वेश्चन देम कि इसका विड्थ क्या है, इसका इसमें क्या क्या डिटेलिंग मुझे डालना है, बिकॉज यू आर अ मॉडलर, राइट। तो जो भी कैलकुलेशंस है वो आपको इंजीनियर थ्रू ही मिलेंगे। ओके। और इंडिया में अपन क्या करते हैं, स्प्रिंकल यूज करते हैं, अप स्प्रिंकल। हम्म तो हम्म उसमें पानी का यूज करते हैं और फिर हम्म बाहर वाटर यूज होता है क्या मैम? स्प्रिंकलर्स आप प्लेस कर सकते हो एंड वाटर का डायरेक्शन उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। स्प्रिंकलर्स का ओके। डायरेक्शन वाइज आप वो डिटेलिंग दे सकते हो। ओके, लास्ट 1 minute लेफ्ट। एनी फर्दर क्वेश्चंस?
मैम इस कोर्स में क्या रिविट, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और एमईपी तीनों सिखाए जाएंगे? बेस्ड ऑन आपने क्या ऑप्ट किया है। इफ इट्स प्लेन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर होगा। इफ इट्स आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, तो दोनों होगा। एंड इफ इट्स एमईपी, तो एमईपी होगा बेस्ड ये ऑन योर। तीनों चीजें अलग अलग रहेंगी क्या? तीनों अलग अलग ही होती है जनरली। सॉरी मैम, आई वुड लाइक टू आंसर दिस। एक्चुअली जो प्रोग्राम जो वी आर ऑफर कर रहे हैं इसमें तीनों ही कंबाइंड है, तो ऑल द एंटायर थिंग विल बी टॉट इन दिस प्रोग्राम। ओके, बट कितने इट मंथ का रहेगा मैम ये? दिस विल बी 2 months प्रोग्राम। ओके मैम। यस। and whatever is in the architectural thing, this is the base of Revit. तो बेसिकली आप नॉर्मल आर्किटेक्चरल एलिमेंट से ही स्टार्ट करते हो, जैसे लेवल्स हो गया, ग्रिड्स हो गया, ये सब चीजें। एंड देन एक लेवल पे आने के बाद देन सब चीजें बाइफर्केट होती है। सो इफ यू आर जैसे मैम सेड कि इट्स अ कॉम्बो कोर्स, तो ऑब्वियसली तीनों चीजें होगी। बट व्हेन यू कम टू स्पेशलाइजेशन, तो एक पॉइंट के बाद चीजें बाइफर्केट होती है कि स्ट्रक्चर मुझे कितना डेप्थ में सीखना है, आर्किटेक्चर कितना, और एमईपी कितना। मैम मेरी एक क्वेरी है, बस लास्ट क्वेरी। हाँ, यस। कि जैसे कि अपने 2 मंथ का कोर्स किया, ठीक हम्म। है, देन आफ्टर हमें कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है, तो आपके थ्रू आफ्टर 2 मंथ के बाद हमें कोर्स दिए जाएंगे या कुछ प्रोजेक्ट दिए दिए जाएंगे क्या, ऐसा कि हम आपके प्रोजेक्ट में मैम काम कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? आई गेस मैम वुड बी तो बेटर आपको टू। असाइनमेंट्स मिल जाएंगे पोस्ट कोर्स कंप्लीशन, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे दैट विल बी अगेन सम प्रोजेक्ट्स व्हिच विल टेक यू सम टाइम टू कवर। उसके बाद ही इफ यू आर हैविंग मोर डाउट्स और टू कनेक्ट विद द ट्रेनर, आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपका 1-on-1 सेशन भी अरेंज कर सकते हैं मैम के साथ। बट यस, अगर आपको रेविट के बाद फर्दर और जानना है, देन देयर इज अ डिम कोर्स दैट इज कमिंग इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी रुड़की। प्रोट्रेन इज ऑफरिंग दैट, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड ये कि एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर हमारे पास लाइफ टाइम तक रहेगा कि एक लॉ पीरियड्स ऑफ 2 मंथ्स के लिए, तो 2 मंथ का तक? सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल, जितने ड्यूरेशन का कोर्स है तब तक के लिए सॉफ्टवेयर रहेगा आपके पास। लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा? नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा। मे बी अगर आप ओके, रिक्वेस्ट डालते हैं तो मे बी कोर्स कंप्लीशन के बाद 1 or 2 months का एक्सटेंशन मिल सकता है, बट लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा कोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, Okay, ma'am. I think we are good to Yeah. close the session. It's 10:30. Thank you so Yeah, much yeah. for your time, ma'am. Thank Thank you you to all all. the learners who have joined the session. We are good to close. Last question, ma'am. Yes. What is mean by parametric and non-parametric family? Parametric is more of which you can edit there and there. जैसे I gave an example of door, कि door अगर मैंने 900 width का है और मुझे उसको 1000 करना है, तो मैं अगर वही डोर 900 को 1000 करूँ, तो दैट इज पैरामेट्रिक। बट अगर मुझे 900 के बजाय 1000 का डोर चाहिए, तो वो डोर अगर मैं 900 वाला डिलीट करके 1000 का डालती हूँ, दैट इज नॉन पैरामेट्रिक। सो विच आई कैन एडिट एंड मॉडिफाई इज पैरामेट्रिक, विच आई कांट एडिट और मॉडिफाई इज नॉन पैरामेट्रिक। Thank you, ma'am. ओके मैम, थैंक यू Okay. मैम। Thank you all for your time. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay.